Namaskar and good evening, everyone. I, Mamta Balasubramaniam, welcome you all to the Parampara Utsav on behalf of SPICMECA. Today, on the inaugural day of Parampara Utsav, we have the honor to have Pandit Rajneesh Mishra ji and Pandit Ritesh Mishra ji with us. A very warm welcome to both of you, Pandit ji. Thank you so much for joining us today. It's an honor having you today. Now, I would like to invite the Vice Chairperson of SPICMECA, Shri Lakshmi Konaji, to inaugurate the Parampara Utsav. Namaskar, Lakshmi ji. Namaskar. And a warm welcome to Ritesh ji and Rajneesh ji. It's an honor to have you with us this evening, sir. SPICMECA, after a successful Anubhav series, with the interaction and performances of stalwarts of Indian classical music and with 52,000 voluminous registrations, is inaugurating Parampara Utsav today. This Utsav is by the younger, talented artists who are taking their legacy forward. This would be an inspiration to the million children and youth who are a part of this 43-year-old movement called SPICMECA. This kind of heightened inspiration we feel is very much required in these stressful testing times. As the young and dynamic artists are the torchbearers of our glorious heritage, the youth of this world are the patrons. And it is the need of an hour to have these both on the same platform. SPICMECA has provided such a platform for the past 4 decades and is now bringing these two important aspects of the cultural world together into the virtual world. It's an honor again, sir, to have you with us today and performing for us today. And I now over to Mamta ji to take this whole interaction forward. Thank you so much, sir. And we look forward to a great Parampara series starting with you, sir. Thank you. Best wishes to you all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi ji. Thank you so much for your words. Okay, now let us take our Parampara Utsav to the next step. And let us have some interesting interaction with Shri Ritesh ji and Shri Rajneesh ji. So I would like to invite my co-host Kritika. Please come forward and let us have an interaction. You must be having a lot of questions for Pandit ji. Sure, ma'am. Thank you so much. Pehle to I welcome Rajneesh ji and Ritesh ji. It's a pleasure to have you opening inaugural session of Parampara. I would like to give our audience a brief introduction of this duo. So, duet singing in the Indian classical music is considered a very difficult art, for it requires not only individual competence, but a great amount of self-control to improvise and harmonize at the same time. The maestro duo, Pandit Ritesh Mishra and Pandit Rajneesh Mishra, have put in everything to achieve such excellence under the guidance of the living legends, the sun and the moon of the Banaras Gharana, Padma Bhushan Pandit Rajan Mishra, the father, and Pandit Sajan Mishra, their uncle. Enliving the 6th generation of the family of great musicians, the artist brothers are gifted with a very pleasing voice and sensibility for musical notes. Skilled with rich knowledge of Indian ragas, the duo has performed at most prestigious concerts all over the world, such as the BBC Proms at Albert Hall, London, Lincoln Center, New York, USA, and also at the closing ceremony of the Commonwealth Games 2002 in Manchester, UK. They have also sung the 3rd track Mahadev in the album called Rise that has been nominated for the prestigious Grammy Awards. Top grade vocalists of All India Radio and Television, they have been awarded the Yuva Ratna Award for the year 1999, Bhavishya Jyoti Award for the year 2007, Sangeet Natak Academy Award for the year 2008, and the Sangeet Samriddhi Award. So there's quite a lot of accomplishments in such a young age, and we are very honored to have you online. We look young, but we are not that young. I think for a classical musical age, you are pretty young. I mean, people practically start their careers at 30 and 40 years of age. So you hardly look your age. So, Mamta ma'am, would you like to open with the questions? Yes, sure. रितेश जी और रजनीश जी, जैसे कि कृतिका मेंशन कि आपकी जो ये परंपरा है गायकी की,
इतनी पुरानी है, मतलब 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, आपके 6 जनरेशन इसी प्रोफेशन में है। तो क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर यंग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनको ज़रूर ये जानने की इच्छा होगी कि आपका बचपन कैसा रहा होगा। बिकॉज़ वाज़ इट एन ऑर्डिनरी चाइल्डहुड जो हर कोई बच्चा होता है, या फिर क्योंकि आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी, बिकॉज़ यू वर सपोज्ड टू टेक फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ योर फैमिली, द म्यूजिक लेगेसी, और वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है अपने आप में। तो कैसा रहा था आपका बचपन, हम ये जानना चाहेंगे रितेश जी। हमारा बचपन बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल था, क्योंकि उस वक्त जब हम बहुत छोटे थे, तब से हम अपने पिताजी और चाचा जी का संगीत का सफ़र देख रहे हैं, और उनका रियाज देखा, वो कैसे उनको ऑब्जर्व काफ़ी किया, और जैसे जैसे उनके पास समय होता था तो वो हमारे लिए भी समय निकालते थे कि हम उनसे धीरे धीरे हमने अपनी तालीम शुरू करी। और फिर उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये लिया कि हम दिल्ली में रहते हुए भी हमारे समर वेकेशन में हमें बनारस भेजते थे हमारे दादाजी के पास, और हमने उनसे भी अपनी तालीम ली। तो ये हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प समय था, क्योंकि हम जब अपने दादाजी से सीख रहे हैं तो हम उनसे सीख रहे हैं जिनसे हमारे पिताजी ने भी सीखा। तो उनके पास भी बहुत कुछ था, जो एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने हमसे शेयर किया, साझा किया। और एट द सेम टाइम फिर पिताजी के साथ जब हम चाचा जी के साथ बैठते थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी बहुत ही एक मतलब 1 घंटा अगर हमें गवाया तो उसके बाद 1 घंटा पुराने लोगों के विषय में बताया कि वो कैसे थे, उनका अपना जो आर्ट फॉर्म था वो कैसा था। तो वो हमारे लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशनल था। और ऑफ कोर्स बाल्य अवस्था में सब कोई बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता, वैसे हम भी कि हम लोगों का खेल में बहुत मन था, और मतलब माइंड तो देखिए एक सर्टेन एज में हर इंसान का डाइवर्ट होता है जी। तो उस तरीके से हम लोगों का भी ये था कि हम थोड़ा खेलना भी चाहते हैं, थोड़ा घूमना भी चाहते हैं, थोड़ा मित्रों में भी रहना चाहते हैं। तो और फिर स्कूल था, फिर कॉलेज था, तो उसमें उसकी भी प्रेशर्स थे। लेकिन एट द सेम टाइम जब तक हम कॉलेज तक पहुंचे तो तब तक हम अपने पिताजी और चाचा जी के साथ काफ़ी कॉन्सर्ट्स में उनके साथ वोकल सपोर्ट और तानपुरा के लिए जाते थे। तो वो हमारे लिए स्टेज का एक एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, जो आज हमारे लिए काम आ रहा है। जी। So in a way it came naturally to you, I think. You can say. जी। थोड़ा रजनीश जी भी इस पर फोकस करें। जी रजनीश जी प्लीज। जैसे भाई बता रहे हैं बिल्कुल सब कुछ वैसे ही हुआ है। और अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हम दादाजी के पास जाते थे और सीखते थे उनसे। और अब जब हम पिताजी के साथ बैठ के सीखते हैं तो जो पिताजी का ये 55 इयर्स 60 इयर्स का जो एक सफर रहा है, उसका जो एक निचोड़ जिसको कहते हैं, वो अब सीखने को मिलता है। तो अभी मेरे हिसाब से अब हम लोग देसी घी सीख रहे हैं, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट पूरी अपनी जर्नी इतने सालों की करके एक चीज अचीव करता है और वो अपने बच्चों को देता है, तो हमारी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी भी है, और हम खुशकिस्मत हैं कि इस तरीके का संगीत हम लोगों को वो देते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे आगे ले जाएं। जी बिल्कुल। ये हुआ होगा बचपन में, जैसे कृतिका ने बताया कि ड्यूएट सिंगिंग दैट इटसेल्फ इज प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू हैव टू सिंक्रोनाइज, यू हैव टू हैव दैट हार्मनी, दैट रिलेशनशिप, दैट केमिस्ट्री बिटवीन यू, जहाँ पे स्पॉन्टेनियसली बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होते हैं। और बीइंग ब्रदर्स, ऑफ कोर्स ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव देयर ओन मोमेंट्स जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, एंड सिबलिंग राइवलरी वगैरह भी होती है, एंड आपको परफॉर्मेंस साथ में करने होते हैं। सो कैन यू टॉक अबाउट दैट लिटिल बिट, रजनीश जी? देखिए, राइवलरी तो हम सोच नहीं सकते, बिकॉज हम जिन्हें देख के बड़े हुए हैं और जिनके साथ रह रहे हैं
उनके आचरण आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि हमारी उस दिशा पे भी नजर जाए। और जब भी हम लोगों को सिखाया गया, चाहे हमारे दादाजी ने सिखाया या हमारे पिताजी चाचा जी सिखाते हैं, ये संगीत प्रेम का संगीत बना के ही सिखाया गया है हमें। तो हम दोनों जब एक साथ भी गाते हैं या अलग अलग भी गा रहे हैं ऑन स्टेज, तो टोटलिटी में जो एक आउटपुट आना चाहिए, जो हमारा म्यूजिक, क्योंकि वी आर एंटरटेनर्स, हम लोगों को 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जो ऑडियंस को अच्छा संगीत देना है, तो वो अच्छा संगीत बनाने की कोशिश में हम दोनों भाई हमेशा लगे रहते हैं। तो उसमें अभी फाइटिंग का एस्पेक्ट आया नहीं है। एंड मोर ओवर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से दिस डुएट सिंगिंग इज नॉट अ कंपटीशन बट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एंड एमिनेटिंग लव। तो जब प्यार होगा तो कभी भी वो स्पर्धा का सिचुएशन नहीं आएगा, हमेशा एक प्यार रहेगा और एक कॉम्प्लीमेंटिंग रहेगा कि हम एक दूसरे को उसके गाने पर तारीफ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे हमारा गाना आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। Like talking about the legacy, because we are having this Parampara series, you are taking forward your ancestors, मतलब आपके जो बड़े लोग थे, पिताजी दादाजी, उनका legacy you are taking it forward. Now how about the future generations from your family? आपकी future generations क्या कर रही है? Are they also into singing? We would really like to know. Yes, they are doing music. भाई की दोनों बेटियां जो है, राधिका और विभावरी, वो दोनों बहुत अच्छा गाती हैं। मेरा एक बेटा है, वो भी गाता है, बट ही इज इनटू क्रिकेट। तो मैंने उसको छोड़ दिया है, जब तक वो खेलना चाहे खेले, लेकिन लौट के बुद्धू घर को ही आएगा, ये मुझे पता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ कम लोगों के ऊपर भी कभी हमारे पेरेंट्स ने नहीं डाला कि तुमको म्यूजिशियन ही बनना है, क्योंकि शायद ये बात जो मैंने अभी बोली, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या पता उनको भी ये बात पता हो कि हम लौट के वहीं आएंगे। और हम लोगों ने भी बहुत इधर उधर किया और लौट के वापस संगीत में आ गए। तो नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी ही, क्योंकि हम लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाती है और दी गई है कि अच्छा संगीत आगे बढ़ाते चलना है, बढ़ाना है। जैसे 6th जनरेशन है, वैसे 7th जनरेशन भी ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो वो भी आगे आए। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि आपने अपने बेटे को क्रिकेट परस्यू करने के लिए या खेलने के लिए कभी रोका नहीं है, because generally we have this fixation of our mindsets that if children should be carry forward parents' profession, और वो आपको ये करना है, and having such a beautiful legacy, such a rich cultural legacy, ये अपने बच्चे को खेल में, like क्रिकेट में आगे बढ़ने देना, that itself is a huge thing. It's really appreciable. रितेश जी, आपकी 2 बेटियां हैं, वो क्या करती हैं? Do they also sing? Yes, of course. My elder one, she is singing professionally. I mean, professionally उतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी वो थोड़ी सी, मतलब उसका रुझान थोड़ा वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा है। हालांकि वो क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग ले रही है और रियाज करती है बहुत। अभी तो हम यहाँ पर हैं, तो देहरादून में तो शी इज प्रैक्टिसिंग, बोथ द सिस्टर्स आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे एंड फॉर 2-3 hours at a stretch. But at the same time, her interest in music is towards West. She wants to sing jazz, she wants to sing blues. So उस तरीके का उसका एक सोच है। और मतलब मेरे लिए तो ये अच्छी बात ये है कि चाहे वो कोई भी संगीत करे, संगीत करनी है जी, संगीत कर रही है, ये जरूरी नहीं कि वो शास्त्रीय संगीत ही हो जी, वो किसी भी संगीत का फॉर्म हो, लेकिन वो उस पे आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। तो बस भगवान का और गुरुओं का आशीर्वाद है कि वो ठीक दिशा में है। अब जितनी मेहनत करेंगे, जिस तरीके से वो उस चीज को आगे सोचेंगे, वैसे वैसे उनको वो दिशा नजर आती जाएगी। तो बहुत बढ़िया। I'm proud of them. I'm really proud, and
I always try to help them as much as I can. तो मैं उनको इनिशिएट करता हूँ, उनको प्रेशराइज नहीं करता हूँ कि तुमको यही करना है जी। उनका जो इंटरेस्ट कर रहा है एटलीस्ट म्यूजिक तो कर रहे हैं, ये समझने वाली बात। दे आर डूइंग म्यूजिक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दे हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक, दे हैव इंटरेस्ट इन दैट। राइट। और संगीत तो आखिर संगीत होता है, और मेरे ख्याल से हमारी परंपरा में लाइक फॉर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज वी नेवर हैड सच बाउंड्रीज, लाइक इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम। सो हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं ना जी, तो यहाँ पर सबको अपना प्रोफेशन चुनने का पूरा हक है, और उसमें हमें एज अ पेरेंट उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वी आर देयर, डू इट एज मच एज यू कैन। उसके बाद जो भी होगा वी आर देयर अगेन। करेक्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। And how do they balance between studies and the music? Because these days it's like the moment child comes approaches the board exams, like the moment you enter into 10th grade or 12th grade, the life changes drastically. Everything else is out of the routine. It's only studies and academics. So how do they balance, and what do you do as parents so that they can balance between their academics as well as their music? Actually, yes, they have to balance. Yeah, रितेश भाई बताएंगे। Actually, अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में तो हमने ऑनलाइन ही सेशन किया है। मतलब बच्चों ने जो स्कूल अटेंड किया पिछले 2 महीने, वो उन्होंने ऑनलाइन ही सेशन अटेंड किए, और वो ऑनलाइन सेशंस भी काफी टफ थे, क्योंकि कभी नेटवर्क इशू हो रहा है, कभी कोई चीज सामने से जो भी मैम उनकी समझा रही है वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, कभी बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी टीचर्स जिन्होंने भी क्लासेस ली, हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू देयर पेशेंस, क्योंकि उन्होंने इतने ऐसे ऑनलाइन सिचुएशन में और भी बैड नेटवर्क सिचुएशन में भी उन्होंने दे मैनेज टू मेक देम स्टडी वेल, और उनको बहुत अच्छे से उनको मतलब अभी तो वेकेशन चल रहा है बच्चों का, दे आर इन अ वेकेशन फॉर अ मंथ, और अपना जो उनको हॉलीडे होमवर्क मिला है वो कर रहे हैं, एंड दे आर रेगुलर इन टच विद देयर टीचर्स एंड दे आर हेल्पिंग देम अ लॉट। I mean, I'm sure to all the students. तो ये बहुत अच्छी बात है, और अभी समय है तो उसका ये लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो कम से कम घर पे रहकर एक्टिविटीज को एक प्लान वे में कर दिया कि सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज करो, फिर थोड़ा पढ़ाई करो, फिर रियाज करो, फिर थोड़ा अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखो, कोई मूवी देखो, तो एंड सम फैमिली टाइम, तो ऐसे करके वो बहुत अच्छा समय बीत जाता है, और अभी कहीं सकते हैं नहीं, तो राइट। तो ग्रेट, घर पे बिकॉज पेरेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिटी को ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम एकेडमिक्स और स्टडीज़ के साथ साथ संगीत, लाइक कोई भी आर्ट फॉर्म, एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, नंबर 1 क्यों ज़रूरी है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन दिस सिनेरियो। कृतिका, over to you. Sure. मैं एक सवाल पूछना चाहती थी पंडित जी। ये कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है फिलहाल, so it is proving to be very stressful for youngsters. You can see that several, I mean, suicides have been committed. बहुत बुरा लग रहा है लोगों को, बहुत डिप्रेशन का माहौल। बिल्कुल, हमारा इसमें ये मानना है कि डिप्रेशन होता है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें जो स्टूडेंट्स हैं, और उसका सबसे अच्छा एक तरीका है कि अच्छा संगीत अगर कर नहीं रहे हैं तो सुन लें, क्योंकि सुनने से भी जो आत्म शांति मिलती है वो उनको हेल्प करेगी, और यही एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने घर पे रह के अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज एन आर्टिस्ट हम लोग सिर्फ संगीत नहीं कर रहे हैं अपने घर में, हम लोग बहुत सारी कुकिंग भी करना सीख गए हैं, तो हर इंसान डिप्रेशन की तरफ जाने से अच्छा है कुछ नई चीज सीख ले, या कुछ अच्छी बुक्स पढ़ ले, कुछ अच्छा म्यूजिक कर ले।
Right. रितेश जी कुछ बोल रहा है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब उस डायरेक्शन में ना सोचकर अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें। एक कोई ऐसा काम करे जो कि रेगुलर लाइफ में उन्होंने सोचा लेकिन कर नहीं पाए। आज उनके पास समय ही समय है, तो कम से कम वो काम करें जो कि उन्होंने हमेशा सोचा ही सिर्फ कर नहीं पाए, और आज करने का एक उम्मीद बना है, एक चांस मिला है। बराबर है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज, एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे अभी इतना बड़ा ये सुशांत सिंह राजपूत का ये जो सुसाइड हुआ, yeah, it has come quite as quite a shock to youngsters. Yeah, it was really shocking, but I don't know what depression he was going through, but somehow ये डिप्रेशन फिल्म इंडस्ट्री हो या किसी भी इंडस्ट्री में, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों को डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके जो भी आपकी परेशानी है, आप उसके जड़ में आप खुद हैं। आप इंस्टेड ऑफ आप किसी और को ब्लेम करने के, सबसे पहले अपने ही अंदर उस खामी को ढूंढिए कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। शायद कुछ कमी रह गई है जिसको पूरा करना बाकी है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो वी हैव टू ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड ऑब्जर्विंग योर ओन सेल्फ so that you can be a better person every day. ये और एक सवाल की याद दिलाता है। आप आज रात जोक जाने वाले हैं, राइट? जोक कॉन्स। तो हमारे छोटा जो ऑडियंस है, फॉर द यंग पीपल, can you explain how classical music may have special effects, like every raga has a specific time of playing it? जैसे कि जोग राग जो है मेरे ख्याल से रात्रि के दूसरे प्रहर में बजाया जाता है या फिर गाया जाता है। तो अभी हम जो है वी आर प्लेइंग इट इन द इवनिंग, इन द फर्स्ट प्रहर। तो whether it's allowed, how do you feel about it, and what are the meditative effects, or what are the different effects? There are a lot of different effects. तभी अगर समय के हिसाब से अगर राग बने हैं तो वो किसी कारण से बने होंगे, और उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे गाया बजाया जाए तो उसका जो एक वाइब्रेशन है, उसका जो एक माहौल है, उससे निकलने वाला एक जो हार्मनी है वो अच्छे से क्रिएट होता है। शायद इसीलिए संगीत महर्षियों ने उस वक्त उस समय के हिसाब से रागों को देखा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास ये स्पेशल एक रिक्वेस्ट आया था कि मतलब स्पिक मैके में हम लोग अक्सर अर्ली इवनिंग रागा गाते हैं या मॉर्निंग रागास गाते हैं, लेट नाइट या लेट इवनिंग रागास गाने का कभी हुआ नहीं। तो उस स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने जोक कॉस सेलेक्ट किया और उसको हमने शेयर किया कि आप लोग उसे दिखाएं, सुनाएं। तो बट अदरवाइज संगीत जो है वो अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो वो अपने आप आपको उस राग के जो समय है उसी पर ही ले जाएगा। अगर आंख खोलकर सुनेंगे तो ऐसा इस समय if you close your eyes and listen to that raga, and then it will take you to that particular time, even if it is the early evening, it will take you to the late evening. जी, और मैं यहाँ पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी रजिश जी और कुंदा मैम, ममता मैम आपको और कुछ? हाँ जी, कि जबकि जैसे बताया गया जोग कॉन्स राग रात्रि का है, पर क्योंकि स्पिक मैके जनरली ऑपरेट्स विथ schools and colleges, basically educational institution, तो generally what happens is we go to them in the morning or in the afternoon during their working hours, and they are generally exposed to those ragas which are performed during the morning or in the afternoon or probably late afternoons. So रात्रि के जो राग हैं उनका परिचय हो नहीं पाता है बच्चों से, तो उसी बात को नजर में रखते हुए दिस वाज रिक्वेस्टेड कि अगर रात्रि का कोई राग अगर सुनने को मिले तो इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। बिल्कुल, और मैं थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग दिस रिक्वेस्ट। जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि स्पिक मैके के थ्रू ही इस ट्रेंड को भी बदल सकते हैं हम। ड्यूरिंग ये जब तक कोविड का चल रहा है, रेस्ट मोड पे है, तो मैक्सिमम आर्टिस्टों के अगर हम रात के ही राग सुनाएं और दिखाएं तो वो
बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है। जी, thank you so much. Thank you very much. I think we can move forward for the performance of the evening. Once again, thank you very much, Rajneesh ji and Ritesh ji, for joining us. It's a huge honor for having you today on the very first day of our Parampara Utsav. It's our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. नमस्कार। Thank you so much. So let us go ahead with the performance now. राग जोग कॉज से हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। राग जोग कॉज में हम 2 रचनाएं सुनाएंगे। पहली रचना विलंबित लय एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं, काहे करे गुमान बावरे अपने को तू पहचान, काहे करे गुमान। दूसरी रचना द्रुत लय एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं, जगत है समझ सपना को नहीं अपना, जगत है समझ सपना। राग जोग कॉस आप सभी से इजाज़त लेते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। संगीत हमारे लिए माँ सरस्वती की आराधना के बराबर है और आज हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारी इस पूजा में सम्मिलित हो जाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए और जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करिएगा। और कुछ भी अगर अच्छा लगे तो वो हमारे गुरुओं के चरणों में समर्पित है। राग जोग कॉस। धन्यवाद।
na Narayana Hare
गुमा काहे कद गुमान तू बावरे अपने को पहचान। काहे करे तू गाहे तू काहे कर
बावर दूं अव्वल को पहचान काहे तो बावर कपने को काहे अपने काहे कर गुमान तू बावरे तू बावरे
धन दौलत धन दौलत सुख री धन दौलत सुख धन धन दौलत धन दौलत सुख धन धन दौलत दौलत धन दौलत सुत सब है मिथ्या धन दौलत सुत सब है मिथ्या धन
सब है मिथ्या राम समाने कर तू द ने सत
जगत है जगत है जगत है जगत है जगत जगत है समझ सपना को नहीं अपना को नहीं अपना जगत है समझ सपना जगत है समझ सपना जगत है सपना सपना जगत है समझ सपना जगत Zagama bagama gaga zani zaga niga niza gama bagama zaga niza jagata gaza niza niza gama bagama zaga niga za jagata samaja sapana समझ सपना को नहीं अपना हाँ जगत है हाँ को नहीं अपना को नहीं अपना हाँ जगत है समझ सपना अंधकार को अंतकाल को अंतकाल को नहीं आवत है नियर अंतकाल को नहीं अंतकाल को नहीं आवत है नियर अंतकाल को नहीं आवत है नियर तब रामदास कहत है नाम सुमिर तरना जगत समझ सपना जगत gama zani zani da zani zani da ba ma ba ga ma ga ga zani za ga ma ba ga ma ga ga ma ga ga ma ga jagata
जगत है समझ सबन धनी नी दा दा गा गा नी दा दा धनी नी दा दा गा गा नी दा दा धनी नी दा दा गा गा नी दा धनी नी दा दा गा नी दा धनी नी दा दा गा नी दा धनी दा गा नी दा धनी दा गा धनी धनी दा गा धनी दा दा नी गा धनी दा गा गा धनी गा गा धनी गा गा धनी दा गा नी गा नी दा गा 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 धनी दा गा ब गा म गा ब गा द गा जगत है समझ सपन जगत जगत है जगत है समझ सपना जगत है समझ सपना जगत
साध रे 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 साध साध रे साध रे साध रे मन सुर को 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 साध रे साध रे साध रे साध रे साध रे है मन सुर को साध रे एक मन को दूसरे से बांध रे साध रे मन सुर को साध रे तान है तान है सूरज किरण तान है सूरज किरण तान है आलाप नीलम का गगन अब मुझे अंकुर धरा पर बांध ऐसा राग रे साध रे सुर को साध रे
मबनी द नी सा द नि मब रे प मेघ से मल्हार ले मेघ से मल्हार ले तू मेघ से मेघ से मेघ से मल्हार ले तू मेघ से मल्हार ले तू गंध से गंधार ले तू गंध से गंधार ले तू घोर पंचम कोकिला तू बहा अनुराग रे साध रे मन सुर को साध रे मन यही तू ध्यान रख मन यही तू मन यही तू ध्यान रख मन यही तू ध्यान 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 मन यही तू ध्यान रख सुर की सही पहचान रख मन यही तू ध्यान रख सुर की सही पहचान रख तू रहे या ना रहे पर सुर रहे आबाद रे साध रे मन सुर
audience and what soulful performance it is. बिल्कुल ये सही कहा है कि ये जो राग जॉक कॉन्स है वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला राग है. Once again a huge thank you to Pandit Ritesh ji और Pandit Rajneesh ji for being with us today. हमें बहुत बहुत मज़ा आया and I'm sure the audience has enjoyed a lot. ये तो आज का पहला दिन है एंड अभी सिर्फ हमने एक परफॉर्मेंस ख़त्म किया है. माई co-host Kritika would like to talk about tomorrow's schedule because tomorrow is the International Yoga Day. So over to you, Kritika. Yes. Hello to everybody, and we hope that you have enjoyed the program. I would like to brief you about our Parampara series schedule. So it will start early morning tomorrow. We have Naad Yog, which will be conducted by Ustad Wasifuddin Dagar. This will be from 4 to 5:30 a.m. Followed by this will be Hatha Yog by Sannyasi Devanand Ji from 5:30 to 7 a.m. And finally, we have meditation conducted by B.K. Srinidhi Ji from 7 to 7:30 a.m. After this, there will be the inaugural session of Parampara, and this will begin immediately after the meditation ends. Shri Venkaiah Naidu, the Honorable President, Vice President of India, is going to address this session. Apart from him, we have several dignitaries, which are Deputy CM Tripura, Shri Jishnu Dev Verma, the Honorable former Minister of Commerce and Industry and Civil Aviation, Shri Suresh Prabhakar Prabhu, the Honorable Minister of Ayush, Shri Shripad Yeso Naik, then the Honorable Governor of Chhattisgarh, Srimati Anusuya Uike, as well as the Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan. And it doesn't end here. There will be two performances after this. One followed immediately after this in the morning will be with Abhay Rustam Sopori ji on the Santur, and there will be an evening performance by Sabir Khan ji playing the Sarangi. So stay tuned for our sessions, and I will hand it over back to Mamta ji to talk about the upcoming program. जी थैंक यू कृतिका. और एक और बार कहीं जाइएगा नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए. 2 मिनट के ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत ही गुणी कलाकार श्री अभिषेक रघुराम जी, और देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ कर्नाटिक वोकल्स. सो we'll have a 2 minutes break. You can utilize this time and like stretch yourself, have some palm exercises, and we see you after 2 minutes break. Thank you. Namaskar once again.